Assalamu alaikum students. I am Rimsha Sair, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, आज जो चैप्टर मैं आपके लिए समराइज करने जा रही हूँ उसका टाइटल है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. So let's get started. Acids. All those substances that give hydrogen ions when they are dissolved in water are called as acids. For example, hydrochloric acids. Acids की ये property होती है कि they turn blue litmus red, and hydrochloric acid is a very strong acid. Then bases, all those substances which give hydroxyl ions when dissolved in water, they turn red litmus blue. For example, sodium hydroxide. Sodium hydroxide जब भी water में dissolve होता है तो it gives hydroxyl ions in solution and is a very strong base. Salts वो substances हैं जो as a result of neutralization reaction बनते हैं between acids and bases. एक सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड. अब हम ये देखते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कैसे एसिडिक और बेसिक होते हैं इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक ऑक्साइड्स. मेटेलिक ऑक्साइड्स certain oxides of metal which react with water to furnish bases. ये बेसिक होती हैं इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देती है इन सोल्यूशन. देन non-metallic oxides. Non-metallic oxides are certain oxides of non-metal which react with water to yield acids. ऐसी oxides acidic होती हैं in nature. For example, carbon dioxide reacts with water, thus yielding carbonic acid, and carbon dioxide is a non-metallic oxide. Amphoteric oxides. Amphoteric oxides dual character possess करती हैं, means ये acidic भी होती हैं और basic भी होती हैं in nature, depending upon कि ये react किसके साथ कर रही हैं. Amphoteric oxides tend to be both acidic and basic in character. For example, aluminum oxide. Aluminum oxide when reacts with hydrochloric acid, it reacts as a base. और जब aluminum oxide sodium hydroxide के साथ react करता है तो it behaves as an acid, thus depicting its dual nature. Then let's move forward towards Bronsted-Lowry concept for acids and bases. Bronsted concept के accordingly Bronsted acid is a proton donor, जबकि Bronsted base एक proton acceptor होता है, as you can see in the figure. Acid donates a proton to a base. In the chemical reaction हम देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ बेस, thus yielding hydronium ion and chloride. For example, in a reaction आप देख सकते हैं कि अमोनिया act as a base and reacts with water to yield ammonium ion and hydroxide ion. अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स और बेसिस पे. कॉन्जुगेट एसिड एक वो स्पीशी है विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन. फॉर एग्जांपल अमोनिया बेस है. अमोनिया विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन टू फॉर्म अमोनियम आयन. अब ये अमोनियम आयन को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया बेस. कॉन्जुगेट एसिड. Conjugate bases वो species हैं which are left after the donation of a proton from an acid. For example, water donates a proton and forms hydroxide ion. Now this is a conjugate base. अब हम देखेंगे कि हम conjugate acid base pairs को कैसे देखते हैं. Species on opposite sides of an equation that differ by a proton. For example, अगर ये एक एसिड है, A1 is an acid, then B1 is a conjugate base of this acid. B2, अगर B2 एक बेस है तो it means कि A2 is the conjugate acid of base 2. For example, HCl acts as an acid and reacts with water which acts as a base to yield hydronium ion and chloride ion. यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्लोराइड आयन है, जबकि वाटर का कॉन्जुगेट एसिड हाइड्रोनियम आयन है. लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कि हम किस तरह इसको जज कर सकते हैं कि कौन सा एसिड या बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. एक एसिड जो प्रोटॉन ज्यादा इफेक्टिवली डोनेट कर सके वो स्ट्रॉन्गर होता है, लाइक एसिडिक एसिड और वाटर. एसिडिक एसिड ज्यादा इफेक्टिवली प्रोटॉन जनरेट कर सकता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर. इट मीन्स कि एसिटिक एसिड वाटर से ज्यादा एसिडिक है और वो बेस जो कि एक्सेप्ट कर सके प्रोटॉन टू अ ग्रेटर डिग्री इज स्ट्रॉन्गर. देन आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की एम्फोटेरिक नेचर होती है. ये एसिड के तौर पे भी बिहेव करता है और बेस के तौर पे भी बिहेव करता है. इस प्रॉपर्टी को हम ऑटो आयनाइजेशन कह सकते हैं. ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज व्हेन
A molecule of water donates a proton to another molecule of water to form a hydronium ion and a hydroxide ion. For example, this chemical equation is a clear depiction of auto-ionization of water. अब वाटर आयनाइज करता है और अपने ही साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स अपने ही आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस सिचुएशन के लिए भी, इस केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि के की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए हम उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया, हमने प्रोडक्ट को न्यूमरेटर में रखा, हमने रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में रखा। अब वाटर मॉलिक्यूल को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में इसलिए नहीं लेते क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है और आयनाइजेशन बहुत ही वीक एक्सटेंट पे होती है। दैट्स व्हाई Kw विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। देन आप देख सकते हैं कि आयनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन एंड दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, और उसकी वैल्यू 1.0 into 10⁻14 के इक्वल होती है। इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन, तो वो एसिडिक सोल्यूशन होगा। अगर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से ज्यादा है तो ऐसा सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन होगा, और अगर दोनों इक्वल क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन कहलाएगा। के की वैल्यू में रिप्रेजेंट करने से बेहतर तरीका ये है कि हम नेगेटिव लॉग ले लें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन का इन टर्म्स ऑफ पीएच, जिसको हम डिफाइन करते हैं। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी देन द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, अगर 7 से ज्यादा होगी देन द सॉल्यूशन विल बी बेसिक, और अगर 7 के इक्वल होगी इट मींस दैट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के लिए वैल्यू निकाली, उसी तरह हम एक एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं एसिड्स के लिए। एसिड्स के लिए जब हम ये एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे तो हमें ये पता चलेगा, हम ये बता सकेंगे कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। Acid dissociation constant Ka is a measure of extent to which an acid is ionized at an equilibrium state. यानी कि एक एसिड है, फॉर एग्जाम्पल acid dissolves in water, reacts with water to form hydronium ion and a base. एसिड है, एसिड ने प्रोटॉन सोल्यूशन में जनरेट किए, हमने उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिराइव की, उससे हमने वाटर रिमूव कर दिया क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन बाय एंड लार्ज कांस्टेंट रहती है। एक्सप्रेशन जो हमें मिला उसको हम बोलेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन। Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इट मींस उतना ही ज्यादा एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, बट हम Ka की वैल्यूज में कैलकुलेशंस करना पसंद नहीं करते क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा स्मॉल आती हैं। दैट इज व्हाई हम नेगेटिव लॉग लेते हैं Ka का, विच इज कॉल्ड एज pKa, और pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती है उतना ही ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड विद अ pKa वैल्यू ऑफ -6। जितनी ज्यादा ये वैल्यू नेगेटिव में होती है उतना ही ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने एसिड्स के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव किया, उसी तरह हम बेसिस के लिए करते हैं, जो कि हमें बताते हैं एक्सटेंट टू विच अ बेस इज स्ट्रॉन्ग। Base dissociation constant Kb and extent of ionization are used to distinguish between strong and weak bases. बिल्कुल उसी तरह a base reacts with water to generate BH positive and OH negative. बिल्कुल उसी तरह हम Kb की वैल्यू निकालेंगे बेस के लिए, बेस के रिएक्शन के लिए, और उसका हम नेगेटिव लॉग जब ले लेंगे तो Pkb की वैल्यू आएगी। जितनी ज्यादा Pkb की वैल्यू कम होगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, उतना ही ज्यादा बेस स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल डाइथाइलामीन, Diethylamine is the strongest base with a value of about 3.02 pKb. Next हम देखेंगे रिलेशनशिप Ka और Kb के दरमियान क्या है। तो बेसिकली Ka और Kb के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है और इन दोनों की प्रोडक्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के इक्वल होती है। यानी कि हम इसका लॉग लें तो लॉग Kw के इक्वल होगा, देन नेगेटिव लॉग लें तो Pkw के इक्वल होगा। जैसे हमने तीनों एक्सप्रेशंस के लिए अलग अलग डेरिवेशंस की, whereas pKw is equals to 14 at 25 degree Celsius, और हमें पता है कि pH plus pOH is equals to 14, जिसके अकॉर्डिंगली pH स्केल पे कैलिब्रेशन हुई है। नेक्स्ट लॉरी ब्रॉन्स्टेड के बाद लेवाइस डेफिनेशन आती है ऑफ एन एसिड और अ बेस। अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा जनरल था और ज्यादा यूनिक था, इसलिए ज्यादा सिग्निफिकेंट रहा। फॉर एग्जाम्पल
आप रिएक्शन देख सकते हैं बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन और अमोनिया ट्राइफ्लोराइड एक अडक्ट या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसमें हमने स्टडी किया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग फॉलो होती है। अब अमोनिया is acting as a base here and is donating a pair of electron to boron trifluoride. boron trifluoride क्योंकि deficient है यहाँ पे इसलिए ये एसिड के तौर पे बिहेव करेगा according to the concept. Moving forward towards buffer solutions क्या होते हैं? Buffer solution is one which maintains its pH fairly constant even when a acid or a base in small amounts is added to it. मतलब कि एक बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर अगर हम थोड़ी क्वांटिटी में एसिड या बेस डालें तो उसका पीएच चेंज नहीं होता, यानी कि बफर सोल्यूशन रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच। अब बफर सोल्यूशन की टाइप्स होती हैं, एसिडिक बफर होता है, बेसिक बफर होता है। अ वीक एसिड टुगेदर विद अ सॉल्ट ऑफ द सेम एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस एक एसिडिक बफर बनाता है। एसिडिक बफर का पीएच 7 से कम होता है क्योंकि ये इसकी एसिडिक नेचर है। सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड मिलके एक एसिडिक बफर बनाते हैं। बेसिक बफर एक वीक बेस और उसकी सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिक बफर बनाती है। अब इसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल NH4OH एंड NH4Cl अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म अ बेसिक बफर। मूविंग फॉरवर्ड हम ये देखते हैं कि बफर एक्ट कैसे करता है या इसकी वर्किंग कैसे होती है। लेट अस illustrate buffer action by taking example of common buffer। हमने बफर ले लिया एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर में एसिटिक एसिड होता है हमारे पास और सोडियम एसीटेट होता है। अब आयनाइजेशन प्रोसेस आप देख रहे हैं आपके सामने कि आयनाइज होके एसीटेट आयन बना रहा है। अब यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट बी शो होगा और अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं इस सोल्यूशन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देती हूँ थोड़ी अमाउंट में, फॉर एग्जाम्पल HCl मैंने डाला इसके अंदर एंड HCl विल आयनाइज टू फॉर्म H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब होगा ये कि ये हाइड्रोजन आयन रिएक्ट कर जाएगा एसीटेट आयन के साथ और एसीटेट आयन के साथ जब रिएक्ट करने लगेगा इट मींस के रिएक्शन मूव कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इट मींस के कॉमन आयन इफेक्ट प्रिवेलिंग है। ये सप्रेस कर रहा है आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड को, जिसकी वजह से पीएच पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा जितना भी थोड़ी अमाउंट में हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल लें। इसी तरह अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल के देखें फॉर एग्जांपल NaOH आयनाइज करेगी और बनाएगी Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब होगा ये कि यहाँ हाइड्रोनियम आयन भी बन रहा है हमारे पास इक्वेशन के अंदर। अब होगा ये कि प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करके वाटर जनरेट करेंगे तो रिएक्शन दोबारा से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा और हमारे पास एसिटिक एसिड ज्यादा जनरेट होने लग जाएगा। यानी कि हमने ये देखा कि ऑन एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पीएच पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब बफर सोल्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो कैसे हैं कि बफर सोल्यूशन वीक एसिड और बेस का बनता है। बफर सोल्यूशन स्टेबिलिटी मेंटेन करता है बाय रिड्यूसिंग या मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एनी चेंज। बफर सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस बफर्स नहीं बनाते हैं। उसके अलावा हमें पता है कि बफर सोल्यूशन रेजिस्ट करता है एनी चेंज इन पीएच। यूजेस की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम इससे पीएच मीटर्स जो आपके लैब्स में होते हैं लेबोरेटरी ग्रेड उनको हम कैलिब्रेट करते हैं, उनकी कैलिब्रेशन ठीक करते हैं। देन हम बफर सॉल्यूशंस को एनालिटिकल प्रोसीजर्स में यूज कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी ये यूज होते हैं। देन पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड भी मेंटेन होती है बिटवीन 7.35 टू 7.45। उसके अलावा आपके इन द स्टमक पीएच मेंटेन होता है तो वो भी बफर सिस्टम मेंटेन हुआ होता है। देन हम देखते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, द रिएक्शन ऑफ एन एनायन और केटायन विद वाटर अकम्पनीड बाय क्लेवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोस मीनिंग वाटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकेज, यानी कि हाइड्रोलिसिस के केस में OH बॉन्ड ब्रेक होता है। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि एक केटायन है, cation is reacting with water to form any hydroxide and is generating hydrogen ions, यानी कि ये cationic hydrolysis है। cationic इस सेंस में क्योंकि it is involving a cation, cationic hydrolysis। नेक्स्ट इक्वेशन में हम ये देख रहे हैं कि एक एनाइन है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिजल्टिंग एज अ रिजल्ट बॉन्ड क्लेवेज हो रही है। बॉन्ड क्लेवेज के रिजल्ट में कोई भी
फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हेलाइड बन रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट हो रहा है। हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस है। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में pH 7 से कम हो जाएगा, जबकि एनायनिक हाइड्रोलिसिस की केस में pH 7 से ज्यादा हो जाएगा। आज हमने स्टडी किया एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को और उनके रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज को डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर रिमशा सहर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।